Usman, switch it on. You can unmute yourself. Usman, have you done your previous work? You can't speak. Your mic is not working. मिस रबिया अनम्यूट शायद बच्चों को करना है. Okay, Usman, I am. You can unmute yourself. शब हुआ है म्यूट. ठीक है. Have you done your work? यस. Show me. Sure. जो रजिस्टर दूसरे रूम में पड़ा है मुझे वहां से लेके आना पड़ेगा. Okay, go and bring. Okay. Fatma, Mehrun Nisa, Amna, please tell me one by one. Amna, have you done your work, previous work? Amna, you can unmute yourself. Amna, unmute करो बेटे अपने आप को. Mehrun Nisa. Last time we were discussing about some concentration units, and we have discussed the first one, which was percentage, and now we are moving towards another unit, which is molarity, right? Molarity is okay, Amna, that's okay, but you should listen from the YouTube. The previous lecture, and if you have any query, you can ask afterward, right? Yes, Usman, did you find your homework? यस. चलें जल्दी से मुझे दिखाएं. जो मैंने सोल्यूशन से आगे नहीं किया हुआ. सोल्यूशन से आगे नहीं किया हुआ. नहीं. टेबल किया हुआ है. यस, उससे पीछे का किया हुआ है. चार्ज लॉ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और बाकी काम हुआ है. टेबल नहीं किया हुआ. टेबल भी नहीं किया. टेबल नहीं किया. बात है आसमान. That's very bad. You people have spent almost one weekend among these, and you didn't completed your work. Last time मैं कह रही हूँ बेटा, you please try to complete your work. अगर आप लोग काम sum up करते जाएंगे, how will be you able to join to complete that? ठीक है, याद किए percentage compositions? नहीं. हाँ नहीं. टीचर समझ जो मुझे उस दिन समझ नहीं आया था ये सही. Astaghfar. At that time, I asked again and again, any question. You didn't set that time. Yes, Zuhaib, have you completed your work? जो भी अनम्यूट करना पड़ेगा. Zuhaib, you can unmute yourself.
नहीं हो रहा। इधर से अनम्यूट है। यस कर लिया है मैंने अपना काम। चलें दिखाएं मुझे, शो मी। ये 2 मिनट आया है, 2 मिनट 2 मिनट लिख से रहा है ज्यादा नहीं काम। होने चाहिए भाई आप। ओके Okay, last time we was discussing about a concentration unit which was percentage. In percentage हमने 4 तरह के method discuss किए थे that how we can calculate. Number 1 was percentage mass by mass, जिसमें हमने solute का भी mass लेना था और solution का भी mass लेना था. Then there was a formula, उसको आपने याद करना था. फिर उसके बाद second option थी हमारे पास percentage mass by जिसमें हमने सोल्यूट को मास में हमने फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. देन देयर वाज थर्ड, वी हैव टू टेक सोल्यूट इनटू वॉल्यूम एंड देन मास ऑफ सॉल्यूशन. जो चीज ऊपर लिखी है दैट इज ऑफ सोल्यूट, जो नीचे है दैट इज ऑफ सॉल्यूशन, राइट. Then last one was percentage volume by volume, in which both solute and solvent will come in the volume phase. ठीक है, ये चारों के चारों थे आपके परसेंटेज के concentration units. उसके बाद हमने एक numerical भी किया था, and I have told you that percentage volume by volume is the most important and usually we use in laboratories to make solutions. This one. Now what we are going to do, we are just moving on molarity. If anyone have any question in the last 10 minutes, I will ask, फिर आपको answer करूँगी मैं उसमें, ठीक है. Now in page number 101 of your book, and over there is last topic of that page, which is molarity, and molarity is always denoted by capital M. ठीक है, molarity के बहुत सारे solutions बनाए जाते हैं. Now coming towards that, what is molarity? Molarity basically definition इसकी जो है वो लिखी हुई है. It is a concentration unit defined as the number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of the solution. Means number of moles of solute. अब आप सबको पता होना चाहिए that what is the formula to find out number of moles of solute. In unit number 1 or 2 where you studied Avogadro's number, mole, valency, all these things, you must remember the number of moles formula. किसी को याद है number of moles का formula? Anybody remembers the formula of number of moles? 6.6. That was Avogadro's number. उससे हमने multiply करना था. But there is a simple formula that is when we want to determine कि कितने number of moles इस question में या इस reaction में participate कर रहे हैं, तो उसका formula ये होता है mass of solute या that particular thing in gram divided by molar mass of solute in grams per mole. This is the formula of number of moles. Means mass of solute जितना आप उस reaction में mass ले रहे हैं. Let's say you are taking 20 grams of solute. That will come upside. और वो किस चीज के है? Like I have given you the example of sugar. तो उसका जो molecular weight सारे का सारा determine करते हैं. That is known as molar mass. उसको हम उससे divide कर देंगे तो हमारे पास number of moles आ जाती हैं. अब इस वाले formula को हमने लगाना है molarity में. So we can say molarity M is equal to, ये सारी चीज हम ऊपर लिख सकते हैं, mass of solute divided by molar mass. आगे आप units भी लिख सकते हो, grams per mole. Then you have to divide it. यानी ये तो आ गया हमारे पास number of moles का formula. उसको आपने divide करना है volume of solution से, जो कि किसमें होगा? डेसीमीटर क्यूब में, right? So we can also say that is equal to, क्योंकि ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है mass of solute divided by molar mass, ये है number of moles. So to make it simplify, we will simply write it number of moles and divided by volume of solution, that is in decimeter cube, right? समझ आ गई है यहाँ तक? Usman, is it clear or not? Yes. Zuhaib, come back if you don't find the homework. Usman, समझ आया?
यस अब आया है। देखें, नंबर ऑफ मोल्स वी हैव अ फॉर्मूला। पिछले चैप्टर्स में आपने डेफिनेटली यू हैव लर्न अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का पहले फॉर्मूला लिख के दिखाया था। सेवरल फॉर्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स के, बट द इजीएस्ट है जिधर से हम स्टार्ट करते हैं, बीइंग अ 9th क्लास बेसिक नॉलेज जहां आपको दिया जा रहा है केमिस्ट्री का, ओवर देयर इट इज द बेसिक फॉर्मूला दैट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वो मास जो हम लेंगे जिसका हमने जितने परसेंट सोल्यूशन बनाना है उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से। मोलर मास कैसे आता है? लेट्स से आई एम सेइंग इट टू यू दैट C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसका हमने मोलर मास निकालना है। We all know कार्बन का मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका हम एक्यूमुलेटिव लेंगे, जो भी आएगा दैट इज आई थिंक 126। दिस इज द मोलर, या 106 इतना है। दिस इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलैरिटी आपको ये कहती है दैट यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिटरमिन करेंगे? हम वही वाला सेम फॉर्मूला उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है और उसको डिवाइड कर दिया है जितना हमने सोल्यूशन बनाना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देन उसको सिंपलीफाई किया हुआ इन योर बुक। ऊपर फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का था, दे हैव रिटन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसिमीटर क्यूब। दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड फॉर्मूला, which is molarity is equal to mass of solute in grams, and then we have to divide it molar mass of solute multiplied by volume of solution। ठीक है, साथ ही इसके यूनिट्स भी लिख देंगे हैं। दिस इज द अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दे सिंपली रीअरेंज द फॉर्मूला। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, किसकी बात कर रही हूँ, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको उन्होंने रीअरेंज कर दिया। दे हैव केप्ट मास ऑफ सोल्यूट ऑन द अपर साइड एंड डिवाइड, जो मोलर मास था वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया के साथ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। दीज आर रिगार्डिंग मोलैरिटी फॉर्मूला, राइट? क्लियर है यहाँ तक? यस क्लियर? यस जुहैब, यू डिडंट फाइंड द होमवर्क? जुहैब, जो होमवर्क मुझे मिल गया, मिल गया? मिल गया होमवर्क। यस, दिखाएं कितना किया। ये आगे मूव ऑन द नेक्स्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक किया। देख लो कोई वहां पे जहां तक मुझे पहले कहा था प्रीवियसली। क्यों नहीं क्या? किया? व्हाई डिडंट यू डू इट? काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? बस चेक करना कितना था काम। क्या? व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर वर्क? जो भूल गया था, ये बस मुझे भूलने की आदत है। किसी ने भी नहीं काम किया हुआ। लेकिन मैंने टेबल तो याद कर लिया है। सुनो फिर मैं अभी बाद में। चेक सुन लेना। चलें ठीक है, लास्ट 10 मिनट्स में मैं आप लोगों से सुनूंगी। देखो साथ साथ प्लीज होमवर्क करो ताकि आप लोगों को इजी रहे कि आप लोगों ने क्या किया काम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, गर्ल्स एंड बॉयज, यू हैव टू स्विच योर कैमरास। फर्स्ट आई विल चेक योर वर्क एंड देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, so please complete your work. Every teacher is going to do the same thing, so you can't escape yourself. अच्छा जी, मोलैरिटी समझ आ गई। अब हम आगे मूव करें प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन की। हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो वी विल फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू द मोलैरिटी।
हमने किस तरह से करनी है। अब 1 मोलर सोल्यूशन जो है किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड dissolving 1 mole of the solute in total volume up to 1 deciliter cube in a measuring flask. अब देखें हमने molarity की definition जो पढ़ी है, we have just studied. We want to make 1 molar solution. SOLN is for solution. ठीक है, हमने ये बनाना है. How will we make it? हमने molarity की definition ये पढ़ी है कि the number of moles dissolved of solute, उसको divide करना है हमने उस वॉल्यूम में जितने में हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं. सो व्हाट विल वी डू, वी विल टेक डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. इतना हम पानी लेंगे कि उसको 1 डेसीमीटर क्यूब तक फिल कर सॉल्यूशन के. अब ये समझ आ रही है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपने लेना है. हमने मोल कैसे निकालने हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया. हाउ विल वी कैलकुलेट, मैं दोबारा बता रही हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी आपसे. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि दैट 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेना है. सोल्यूट इन केस हमारे पास है शुगर. अगर चले सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl. NaCl का वेट कैसे डिटरमिन करते हैं, वेट कैसे करते हैं? How will we determine the molecular weight of NaCl? मोलेकुलर वेट कैसे करेंगे क्या? नहीं पता. Anyone else on? Muzna, Aliza, Mehrunisa, anyone from you? उस्मान नहीं आता? सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखें, पता नहीं पहले चैप्टर्स पढ़े भी हैं कि नहीं. ये देखो, मैं आपको कहती हूँ दिस इज सोडियम क्लोराइड. इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट. टेबल सॉल्ट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट. ठीक है, राइट. अब हमने इसका मोलेक्युलर वेट फाइंड आउट करना है. जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मोलैरिटी, आप लोगों को नहीं पता, यू शुड स्टॉप मी देयर एंड आस्क मी टीचर हाउ वी कैन डिटरमिन द मोलर मास, बट यू डिडंट. अब मोलर मास इसका हमें डिटरमिन करना है. देयर इज अ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल का पता है सबको? पीरियोडिक टेबल पता है क्या होता है? यस. बुक्स में है, जो वो ओपन करें जरा उसको. पेज नंबर क्या है पीरियोडिक टेबल का, कहाँ पे है आपके बुक में? पेज नंबर 48 है. ओपन पेज नंबर 40. 48. 48 ठीक है. दिस इज मोटरन पीरियोडिक टेबल, यू कैन सी नाउ. अब इसमें आप देखें, सबसे पहले ढूंढे वेयर सोडियम Na. फाइंड इट आउट. सोडियम. It is a metal. It should be in yellow color. It should be in the first period or first group. जल्दी से बताएं मुझे. फर्स्ट ग्रुप. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. लोग टीचर नंबर 3 पे है Na. नंबर 3 वहां पर देखें लिखा हुआ है सोडियम Na और इसके नीचे वेट लिखा हुआ है इसका 22.99. ऊपर लिखा हुआ है 11. ठीक है. अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अगर वी हैव अ पीरियोडिक टेबल. अब चूंकि आप लोगों को कुछ रेट्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, कॉमन चीजों के, जैसे सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन चीजों के. बट मैं आपको बता रही हूँ, अब गौर से मेरी बात सुने. पीरियोडिक टेबल में हर चीज का वेट लिखा होता है. दिस इज 22.99 मींस 23 हो गया राउंड अबाउट. ठीक है. दिस इज द मोलेक्युलर वेट ऑफ सोडियम. दिस इज द मोलेक्युलर वेट ऑफ सोडियम. ठीक है. और ये जो 11 है इसको बाद में बताऊंगी कि ये क्या चीज है. तो अगर आपको कहीं पे भी किसी चीज का भी वेट फाइंड आउट करना है, जस्ट ओपन द पीरियोडिक टेबल. ये शुरू की बात कर रही हूँ जब आपको याद नहीं होती चीजें. ओपन द पीरियोडिक टेबल, गो एंड फाइंड आउट द एलिमेंट एंड देन फाइंड आउट द वेट. आप देखें, अगर इधर आप देखें कार्बन,
नॉन मेटल्स वाली कैटेगरी में आएगा कार्बन। इन द सेकंड ग्रुप you can see over here it's carbon, नजर आ रहा है, molecular weight, right? Similarly अब find out करें क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है वेट? फाइंड आउट क्लोरीन। क्लोरीन is also 35.45 या 35.45 yes. Chlorine is equal to 35.45. So if we make a round figure, we can also write down 35 and 36. But more precisely, हम इसको बोलते हैं क्लोरीन का वेट है 35.5. अब ये वेट्स आ गए हमारे पास। What is the weight of sodium? 23. ऐसे ही है। प्लस क्लोरीन का क्या वेट है? 35.5. इसको कैलकुलेट करें, व्हाट विल बी द आंसर? प्लस करें इसको, 58.5 58.5 58.5 per mole. This is the molecular mass of sodium chloride. समझ आ गई किस तरह से मोलिकुलर वेट निकलता है? यस क्लियर है बॉयज? यस ये हमें अब सारे याद करने पड़ेंगे। बेटा कुछ चीजों के लाइक जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी मास्टर इन दैट। ठीक है, बट थोड़ी सी एफर्ट तो करो। मैं आपको बस ये बता रही हूँ, इस जनरल पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं आता दिस इज रियली वेरी बैड। इसका मतलब आप लोगों ने रट्टे लगाए हुए हैं। वहां पे ग्राम फॉर्मूला मैस है, ग्राम मैस है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मैस है, सारी चीजें डिफरेंट है और जरा जरा सा फर्क है। ठीक है, चलो है एनीवेज, दिस इज द वे वी कैन डिटरमिन द वेट। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। C6H12O6 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका वेट डिटरमिन करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सी का वेट, वैसे जुबानी बताएं, मैं आपको वेट बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग सी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले कार्बन को फाइंड करेंगे। कार्बन का वेट है 12। ठीक है, 12 को हम क्या करेंगे? अब 12 6 से मल्टीप्लाई 6 से कितने कार्बन के एटम है उधर? 6 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और फिर करेंगे प्लस, मींस दिस इज द वेट ऑफ कार्बन। ये 6 एटम है, उसको हमने उसके मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है वेट? हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। इट मींस इट्स 1। हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई पे क्या होगा? 12। This is the weight of hydrogen. Now we are going to make it plus. Oxygen is 16 multiplied by 6 multiplied by 6 This is the weight of oxygen in glucose. अब हम इस सारी की सारी को सॉल्व आउट कर लेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा that is the molar mass of glucose. क्लियर हो गया किस तरह हमने मोलर मास निकालना है? यस मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। इट्स 126, आई नो दैट। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब आप देखें, अब मैं आपको मोलर सॉल्यूशन बनाना है ना, उससे पहले अब आपको एक चीज क्लियर होगी, हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? दिस इज फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमने देख लिया कि किस तरह। लेट्स से अगर मैं आपको कहती हूँ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का या किसी का सोडियम क्लोराइड का बनाना है, तो व्हाट विल वी डू? हमने उसमें लेट्स से मैंने आपको इक्वेशन दिया कि 20 ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व करने हैं 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? कितना मैंने आपको बताया 20 ग्राम, उसको आपने डिवाइड करना है। कितना वेट आया था उसका? 58.5। देखो ग्राम्स पर मोल। ऐसे किया हमने। अब देखो, ये देखो ग्राम से कट रहा है। ठीक हो गया। अब इसको जो डिवाइड करोगे जो भी आंसर आएगा, लेट्स से इट्स A, इट इज ओनली मोल विल कम ओवर हियर। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ आ गया? हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है यहाँ तक बेटे? यस ठीक है, अब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू मोलैरिटी के लिए? The formula which we have studied, that number of moles of solute, उसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जितना हमने बनाना है, that should be in डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास लेट्स से आए हैं A।
ठीक है, A इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमने उसको डिवाइड कर देना है। लेट्स से हमने बनाना है 1000 डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो ओनली 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा दैट इज मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सपोज रीडिंग लिखती हूं B, just for the sake that you people understand that how it is going to be solved out. Clear है that how we are going to prepare a solution? यस जब समझ आई है बिल्कुल सही। देख लो सारा लेक्चर इसमें गुजर गया हमारा, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ मोलरिटी पढ़ा। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूं दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। सबसे पहले ये कैलकुलेशन हमने करनी होती है कि हमने कितने ग्राम लेना है। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है दैट यू हैव टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट फाइंड आउट करेंगे। सोडियम इज 23, क्या करेंगे आगे उस्मान, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 वेट कैसे डिटरमिन करेंगे? आगे O प्लस O O का is 16 16 H का है 1 plus 1 is equal to 40. This is the molecular weight of sodium hydroxide. ठीक है, 40 grams per mole. We have to prepare 1 molar solution of this. सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए उन्होंने हमें कितना मैस कहा है, वी हैव टू टेक जितना भी 20 नंबर ऑफ ऊपर हमें बोलेंगे और डिवाइड कर देना है हमने उसको सिंपली 40 से। एक ये वे है, दूसरा वे ये है 1 मोलर सॉल्यूशन। इसका मैंने वेट तो बताया है। 40। We will simply take 40 grams of sodium hydroxide and then we have to dissolve it. इस तरह की मेजरिंग फ्लास्क आपने शायद देखी हो लैब में, अगर आप गए हो ग्रेजुएटेड मेजरिंग फ्लास्क, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितनी है। लेट्स से इट इज ऑफ 1000 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब जितनी भी है। आप 40 ग्राम वेइंग बैलेंस पे वे करोगे, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, यू विल सिंपली पोर दिस इनटू इट। वो इस तरह चली जाएंगी और उसके बाद आप पानी डाल के सोल्यूशन जहां तक वो मार्क लगा होगा उधर तक आप वाटर ऐड करोगे। देन दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 1 मोलर। समझ आ गई? क्लियर है? यस That how we are going to prepare 1 molar solution of sodium hydroxide. We will simply take 40 grams जो उसका weight है and then we will going to dissolve it into water and makes the volume up to 1 decimeter cube। उस्मान क्यों हंसी आ रही है? मुझे नहीं Okay, ऐसी in आ your रही। book it is written as amount of solute is increased, its concentration or molarity also increases. Like we are taking 40 gram for 1 molar solution. लेकिन अगर चेक हम तो ये इसको ऐसा डबल लग कर रहा है देते जैसे हैं, कोई वीडियो जा रही है, कभी बिल्कुल स्लो मो हो जाता है, कभी 20x पे I वीडियो don't तेज know हो जाती है। that is because when the internet connection is not stable. I don't know कि अब ऐसा क्यों रुक हो गई जाता है। है। पता है मुझे, आपको बहुत हंसी आती है इस बात पे। I have noticed you many times. अच्छा जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये 40 ग्राम है लेकिन अगर हमने 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, we will simply double the amount. ये 40 या 40 प्लस 40 हो जाएगा 80। If you take 80 grams of sodium hydroxide और उसको 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर या 1000 ml में करेंगे तो that will be the solution 2 मोलर। समझ आ गई है? बॉयज समझ आ गई बेटे? यस हाँ जी जुहैब, उस्मान जी। क्या आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगले लेक्चर से आप उर्दू में दें, इंग्लिश की जगह उर्दू में दे दें, तब ज्यादा अच्छी समझ आएगी। मैं तो बड़ी आसान इंग्लिश बोलती हूँ जुहैब, सही कह रही हूँ। लेकिन आई कभी विल कभार ट्राई। इतनी स्पीड में चली जाती हैं आप, ये समझ ही नहीं आती। तो आप मुझे उधर ही स्टॉप कर दिया करेंगे टीचर, मुझे समझ नहीं आ जाए तो मैं एक पॉइंट क्लियर करती हूँ ना, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछती हूँ इज इट क्लियर, आगे चलें। तो फिर आप लोग खुद ही मुझे कह रहे थे यस टीचर यस टीचर। चलो अभी तो आपने समझाया ना ये टू उसके बारे में, क्या उसकी समझ नहीं आई। देखो मैंने आप ये हमने 40 ग्राम लेके डिसॉल्व किया 1 डेसीमीटर क्यूब में, कितने मोलर सॉल्यूशन होगा? 1 मोलर। यस अब मैं कह रही हूँ आपको 2 मोलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 40 को डबल कर देंगे। 40 प्लस 40 80 80
हमने उस अमाउंट को डबल कर दिया, लेकिन सोल्यूशन हमने 1 डेसीमीटर क्यूब ही रखना है, तो दैट विल बी 2 मोलर सोल्यूशन। ओके अगर हमने 3 मोलर बनाना है तो हमारी जो पहली अमाउंट कैलकुलेटेड है 40, जो उसका एटॉमिक उसको वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी 3 मोलर सोल्यूशन, राइट? यस समझ आ गया? यस Yes, Eliza, any question? Yes, Usman, what do you want to ask? Usman, unmute yourself. यस जी बताएं, you have raised a hand. जी, मैंने ये पूछना था कि जब हमने इसकी क्वांटिटी डबल करनी है तो इसका वेट क्यों डबल कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सल्यूट है, ये कम अमाउंट में है, इट इज इन लेसर अमाउंट, यस तो हमने सल्यूट को ही देख के मोलर सोल्यूशन बनाना होता है, क्योंकि सल्यूट का वेट ही मैटर करता है, ठीक है? अगर हमने 3 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो जितना उसका वेट है उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, दैट विल बी 3 मोलर सोल्यूशन। समझ आ गई? और वो इसमें उतना उतना ही सैचुरेटेड। इसके अंदर मोलर सोल्यूशन में सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी मैटर करती है? हाँ जी, सोल्यूशन की नहीं करेगी। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों को आज के लिए बस यही है कि यू हैव टू कंप्लीट द वर्क टिल मोलैरिटी। मोलैरिटी से पहले पहले जो आपको समझ नहीं आया, यू आर वेलकम टू आस्क इन द नेक्स्ट क्लास इन थर्सडे। अगर कोई और इशू है यू कैन आस्क। आमना, महरुनिसा, मुजना, बेटे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और पीछे से काम अपना सारा का सारा कंप्लीट करें। मैं क्या कहता हूँ ना, किसी दिन इसका टेस्ट रख ले ओरल। उस दिन कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा। क्या की बात अभी भी स्लो मोशन में आ रही है? वही मैं बता रहे, कभी 20x की स्पीड लग जाती है, मुझे कभी उस्मान की चीज़ों से फौरन पता लग जाता है। I don't know what happened to the connection. आर यू अ PTCL यूजर? No, I am not a PCL user. राइट। Zohaib, tell me how many types of solutions we have. जब वन इज सोल्यूट, सेकंड इज Already, सॉल्वेंट, बस मुझे सब types बताएं. टू नहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो तकरीबन 3 से 5। नहीं नहीं, types of solution जो टेबल में हमने पढ़ी थी, that how many types of solution are there? 9 9, yes. Depending upon what? depending upon the properties of their matter: solid, 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 liquid, solid, gas, gas, solid, gas, liquid, gas, Yes. gas, gas, liquid, gas, liquid, solid, liquid, gas. पूरे नो। हाँ, Zohaib, understand? तो यस, क्या उस टेबल के बारे में पूछ रही थी? I was. That are basically the types of solution. कि how many types of solution are there? There are 9 types of solution. ओके ठीक है? अच्छा जी. The time is going to be up after 1 minute. Next time, inshallah, we are going to do the numericals of molarity. तो उसके लिए पहले ढूंढ के रखना, जस्ट रिकॉल कर लीजिएगा अपने जहन में कि हमने क्या पढ़ा था। जब भी टीचर कोई कहती है ना कि 1 मिनट रह गए, चल फिर 1 सेकंड में खत्म हो एक जाती सेकंड ही होता है। और आपने पिछली क्लास में बात करी थी कि इसको कोई ना कोई तरीका निकलेगा, क्लास बंद हो गई थी। जूम को ये बातें अच्छी नहीं लगती, जूम को ये बातें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे क्लास खाली 40 मिनट्स की क्यों होती है? जूम में 40 मिनट से, ये जूम में क्या 40 मिनट से ज्यादा ही क्लास नहीं सकती? नहीं, 40 मिनट्स आ रहा है ना, इससे ज्यादा आप लोग अब्सॉर्ब नहीं कर सकते बातें। मुझे लगता है जूम को हम पर तरस आ गया। अभी तरस नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता आप कर क्या रहे हैं अभी ना सिर्फ 39 मिनट्स हुए हैं, अब 1 मिनट रहता है। 1 minute लेफ्ट।
आज कोई खास नहीं पढ़ा, सिर्फ वो पुरानी बात ही क्लियर किया दैट हाउ वी विल डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये अगर आपको क्लियर हो जाएगी चीज तो इट विल बी वेरी इजी, आपके लिए आगे न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा एटलीस्ट। क्या आप लैपटॉप का बिल्ट इन वेबकैम यूज कर रही है या एक्सटर्नल है? क्या हुआ लैपटॉप को? लैपटॉप का जो कैमरा है ये बिल्ट इन है या फिर एक्सटर्नल है?